u, m, whatever the parameter, and the derivative of parametric function, that is parametric functions generally written as x is equal to f of t, y is equal to g of t. And we have proved the derivative of such parametric function in terms of parameter t, that is dy by dx. What is the derivative? It is dy by dt upon dx by dt. So this is the derivative of parametric function. So y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t परफॉर्म करना है. So whatever the functions, first find the derivatives with respect to given parameter t or theta and then put in this form. So we are practicing this exercise 1.4 from your state board book, right? So I think question number 2 completed. Okay, question number 2 का ये 4th एग्जाम्पल चालू है और is this completed? X is equal to, it is very simple, 2 cos t plus cos 2t, and y is given 2 sin t minus sin 2t at t is equal to pi by 4. This derivative we require at pi by 4. So obviously both x and y are defined in terms of t. So first we will find derivative with respect to t, right? So what is a dx by dt? So this is very simple. 2 cos t का डेरिवेटिव है minus 2 sin t, minus 2 sin t. What is derivative of cos 2t? It is minus 2 sin of 2t. ये चेन रूल है. cos f of x का डेरिवेटिव minus sin f of x into f dash is 2. So this is dy by dt. Now I am differentiating y with respect to t. So derivative of sin t, 2 cos t. Derivative of sin of 2t minus 2 cos 2t. So these are the derivatives with respect to parameter t, right? Therefore, what is the derivative of parametric function dy by dx? As we have proved, it is a dy by dt by dx by dt. And this is dy by dt, you know, 2 cos t minus 2 cos 2t. And dx by dt, we are putting this as a minus 2 sin t minus 2 sin 2t. Right? 2 is there in every place, we can cancel out. Right? 2 is there in every term. So put this derivative, we required it at t is equal to pi by 4. So we are putting t is equal to pi by 4 and this derivative is cos pi by 4. Can I write directly? Cos pi by 4 minus cos 2 into pi by 4 minus sin pi by 4 minus sin of 2 into pi by 4. This is the derivative at that point. And cos pi by 4, you know, cos pi by 4 is 1 by root 2. Cos 90 is a 0. This is minus sin pi by 4 minus 1 by root 2. Sin 90 is 1. So it can be written as 1 upon minus 1 plus root 2. Right? ये 1 plus root 2
LCM लेके 1/√2 we can cancel. This minus is there, cos 90 0 है. So the final form of answer will be this. Right? So it is very simple. No problem at all. Question number 5th. Question number 5th. X is equal to t plus 2 sin pi t. Y is equal to 3t minus cos of pi t. So x and y are defined in terms of parameter t, and we are asked to find the derivative at t is equal to 1/2. Right? So let us differentiate this with respect to t. Differentiating with respect to t. So it is dx by dt. t का डेरिवेटिव है 1 एंड sin pi t का डेरिवेटिव है 2 pi cos pi t. It is t का डेरिवेटिव 1, sin pi t का डेरिवेटिव है cos of pi t into 2 pi yt dy by dt. It is t का डेरिवेटिव है 3 pi into sin pi t plus. ये चेन रूल समझ में आना चाहिए. cos of f of x का ओरिजिनल फार्मूला है ये y is equal to cos f of x. ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं. तो y डैश क्या होगा? माइनस sin f of x into f dash of x. So this is the chain rule, right? So this dx by dt, dy by dt. Therefore, we are interested in dy by dx. So as these are the parametric function, the derivative of parametric function is given by, it is a dy by dt upon dx by dt. Getting students? Is everybody is working? So dy by dt is 3 plus pi sin pi t upon this is 1 minus 2 pi cos pi t. So put t is equal to 1/2. T is equal to 1/2. If I put t is equal to 1/2, it is 3 plus pi sin pi by 2. Sin pi by 2 is 1. 1 minus 2 pi cos pi by 2. Cos pi by 2. Okay, I will write sin pi by 2 also. Sin pi by 2 1 होता है and cos pi by 2 0 है. ये आंसर आ गया 3 plus pi. Sin 90 is 1. Cos 90 is 0. Okay, cos 90 0 है. तो ये 1 minus 2. Okay, 1 minus 0. So okay, final answer is 3 plus pi. Is it okay? Yes. Now the question number 3. This is also derivative of parametric function. But see, the another tool you will get. Now all of you are focusing here. You might have solved by traditional method, but now I am not solving by this traditional way. That is getting dx by dt, dy by dt and then dy by dx. Instead of this, what to do? You see. तो क्वेश्चन नंबर 3 ने जिन लोगों ने सॉल्व किया है वो भी यहाँ पे देखें. You might have solved it by finding dy by dx, dy by dt, dx by dt. But I am not going to solve in this way, right? So all should focus to question number 3. This
will save your time for MCQ examination. This trick, the way that I am solving now onward the examples of parametric function, the way is different. You observe. So in question number 3, it is given x is a into root of sec theta minus tan theta. Y is a into root of sec theta plus tan theta. Then show that, ये show that वाले रिजल्ट ऑलवेज थोड़ा सोच के आंसर देने वाले होते हैं. माइनस वाई बाय एक्स. यस, तो ये सब रिजल्ट में क्या करना है समझे. तो अभी आप ऐसा ट्रेडिशनल वे में अभी तक क्या करते हैं हम, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा. यहां पे टाइटल में लिख दो या नोट लिखो, इलिमिनेट द पैरामीटर एंड फाइंड द डेरिवेटिव. इलिमिनेटिंग पैरामीटर t और थीटा एंड फाइंडिंग डेरिवेटिव. ये टाइटल ही लिखो इसके मार्जिन में, क्योंकि ये हम विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव नहीं ऑब्टेन करने वाले हैं. इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका डेरिवेटिव लिखना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि और ये हर एक कर्व का कार्टेशियन फॉर्म होता ही है. पैरामेट्रिक है मतलब उसका कोई ना कोई कार्टेशियन फॉर्म है. कुछ टाइम्स वो दिखता नहीं है, जल्दी ऑब्टेन किया नहीं जा सकता, थोड़े स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन दिस इज पॉसिबल. तो देखिए अब ये जो पैरामीटर है थीटा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आंसर में dy by dx is equal to minus y by x है. फंक्शन डिफाइन है पैरामेट्रिक फॉर्म में और आंसर है कार्टेशियन फॉर्म में. थोड़ा आंसर से भी आपको हिंट मिलता है when to do this. yes, तो इसके लिए क्या करना है, देखो sec थीटा माइनस tan थीटा है और यहां पे sec थीटा प्लस tan थीटा है. तो क्यों ना मैं इसका स्क्वायर एंड प्रोडक्ट लूं. आप जानते हैं कि ये sec थीटा माइनस tan थीटा इसकी आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अगर आपके माइंड में ट्रिगोनोमेट्री के रिजल्ट्स अच्छे से बैठे हैं तो आपको इमीडिएट दिखता है कि अरे थीटा एलिमिनेट करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो आइडेंटिटी का यूज होता है. ये अभी माइंड में सेटअप करना है पार्ट. फ्रेम ऑफ माइंड सब लोग इधर देखेंगे, अपना अपना सॉल्व नहीं करेंगे. कुछ एग्जांपल्स जिन लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं वो भी इधर देखेंगे. राइट, ये बात आपके माइंड में क्रिएट करना है. फ्रेम ऑफ माइंड ऐसी फॉर्म होनी चाहिए, एमसीक्यू के लिए मस्ट है. यस, देखिए व्हाट आई एम थिंकिंग, दैट इज आई विश टू एलिमिनेट द थीटा फ्रॉम दीज टू रिलेशन. So in order to eliminate the theta from these two relation, you take the help of identity. Recall sec theta and tan theta को contain करने वाली fundamental trigonometric identity कौन सी है? sec square theta minus tan square theta. तो ये sec square minus tan square कब आएगा? जब मैं इसका squaring and product लूंगा तब आएगा. ये प्रोडक्ट में ये दो टर्म आ गए तो a माइनस बी, a प्लस बी. So squaring and taking product. Right? So what I am doing is this, that is x square y square. ये जो एक्शन है वो हर एक एग्जाम्पल के लिए डिफरेंट रहेगी. मतलब यही करना है ऐसा नहीं. Sometimes squaring and adding, sometimes taking quotient,
राइट, डिवाइड करने से भी आएगा कभी, समटाइम्स सब्ट्रैक्टिंग। तो ये एक्शन है, वो फिक्स नहीं है, वो आपको ऑब्जर्व करना है। और ये देखो मैंने इसका ए स्क्वायर प्रोडक्ट लेने से ये क्या हो गया, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये भी स्क्वायर रूट में है, तो ये भी क्या हो गया, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। a minus b, a plus b. So what it is, x square y square is equal to a square into a minus b, a plus b. This is sec square theta minus tan square theta. And you know it is x square y square is equal to a square. ये 1 हो गया। Is this clear? सबको क्लियर हो गया ये? Right? And in this way we have eliminated theta. थीटा को ही हमने eliminate कर दिया, right? तो ये वे है। दूसरा वे मिल गया आपको पैरामेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का। एक ट्रेडिशनल मेथड तो है ही, आप कर सकते हो वो भी, लेकिन वो उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। ये इमीडिएट आता है, राइट? तो x square y square, now you differentiating with respect to x, right? तो ये क्या हो गया, x square, ये प्रोडक्ट है, u v है, x square एक मिनट, डायरेक्ट प्रोडक्ट लेने से ही आएगा ना? यस, स्क्वेयरिंग एंड टेकिंग प्रोडक्ट की जरूरत नहीं थी, ओनली ये तो इसके प्रोडक्ट में ही स्क्वेयर हो रहा है। यहां पे थोड़ा मेरा टेकिंग प्रोडक्ट इज सफिशिएंट, एलएचएस में टेकिंग प्रोडक्ट ही सफिशिएंट था, मुझे स्क्वेयर करने की जरूरत नहीं थी। टेकिंग प्रोडक्ट इज सफिशिएंट, राइट? ये अननेसेसरी मैंने एलएचएस का, मुझे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा चाहिए था। यस, ओनली प्रोडक्ट लेना सफिशिएंट है। समटाइम्स वी नीड टू डू स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग, सब्ट्रैक्टिंग, टेकिंग प्रोडक्ट, ये टेक्निक्स है। तो देखो ये प्रोडक्ट लेने से ही ए माइनस बी, ए प्लस बी हो गया, एंड नाउ यू डिफरेंशिएट दिस। इफ आई डिफरेंशिएट बाय फर्स्ट फंक्शन, दिस इज अ product rule applicable. First function x, derivative of y dy by dx, plus second function y, derivative of x 1 is 0. और देखो आंसर एक ही स्टेप में आएगा। So this is dy by dx is minus y by x. That's all. Fine. तो ये आंसर है। तो एक बात आपके माइंड में, फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा करना है कि पैरामेट्रिक फंक्शन है तो यूजुअल वे तो है ही, दूसरा वे क्या है, उसको शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, उसके लिए पैरामीटर को ही एलिमिनेट कर दो, कार्टेशियन फॉर्म में लाओ कर को। ये कर और ये कर सेम है, ये इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन है। इस कर का नाम कोई जानता है क्या? डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस कर? ये जो कर लिखा है, इसका ये ऐसा लिखे वाला कर कोई जानता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कर? अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग कोनिक सेक्शन पढ़ा है तो नेम याद होना चाहिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यस, उषा इज रिकॉलिंग करेक्टली। ये जो कर होता है, आगे इंजीनियरिंग में ये कर आएगा, कर ट्रेसिंग अगर आपको चैप्टर है वहां पे, तो इट इज लाइक दिस, इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर है, राइट? इसका नाम याद रखो, आगे चल के इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन में ये कर आना चाहिए, आता है। आप इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तब ये कर अगेन वहां पे भी आएगा, इसलिए जानबूझ के इसका नाम और स्केच रिवाइज किया जा रहा है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं इसको। हमने कोनिक सेक्शन में आपको रिवाइज करके दिया है, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
y इज इक्वल टू k, ये जो k पॉजिटिव आया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ऐसा ग्राफ, राइट। अगर निगेटिव आया तो यहाँ पे ऐसा आता है, ये कांस्टेंट राइट साइड वाला निगेटिव आया तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कर्व। तो मैंने कहा कि ये जो भी इक्वेशन लिख रहे हैं मैथमेटिक्स में उसका स्केच है, आगे उसके एप्लीकेशंस है, राइट। यहाँ पे आपको 12th में ही एप्लीकेशंस है, इंजीनियरिंग में तो बहुत सारे एप्लीकेशंस के अक्रॉस आप आएंगे। तो कुछ स्टैंडर्ड कर्व याद करना भी जरूरी होता है। नंबर 2, if x is equal to e sin of 3t, y is equal to e cos of 3t, then dy by dx, prove that, show that है, then show that dy by dx is minus y log x upon x log y। तो यहां पे भी देखें, फंक्शन जो डिफाइन है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में है और आंसर जो है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, मतलब इंप्लिसिट फॉर्म में ये कर्व कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसको कोशिश करेंगे इलिमिनेटिंग t की, राइट। तो यहां पे साइन एंड कॉस है, तो आप जानते हैं कि एक साइन कॉस आया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आया, मतलब माइंड में ये आना चाहिए कि समवेयर हमें साइन स्क्वायर 3t प्लस कॉस स्क्वायर 3t इज इक्वल टू 1 का यूज करना है। हमने 11th में इलिमिनेट थीटा बोल के ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज की थी, इलिमिनेट थीटा। तो ट्रिगोनोमेट्री में भी ये कर्व्स दिए थे और आपको कहा गया था कि इलिमिनेट थीटा। तो यहाँ पे आपको माइंड में ये रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आना चाहिए। यस, ये 1 कब आएगा? पहले तो साइन एंड कॉस की टर्म इंडिपेंडेंट कर लो और जैसे ही साइन कॉस इंडिपेंडेंट मिल गया उसकी स्क्वेयरिंग एंड एडिंग की कि आपको 1 मिल जाता है, मतलब ये t इलिमिनेट हो जाता है। तो साइन एंड कॉस को इंडिपेंडेंटली ऑब्टेन करने के लिए ये ई पावर में है, ई को हटाना है। ई को हटाना है तो टेकिंग लॉग, ई को निकाल देने का सिंपल तरीका क्या है? एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम, दे आर द इनवर्सेस। टेकिंग लॉग, so if I take log, तो it is log x is equal to, ये जानते हैं e and log निकल जाएगा sin 3t। मैं अभी फार्मूला नहीं यूज कर रहा हूं, आपको इनवर्स का एप्लीकेशन मालूम होना चाहिए। log और एक्सपोनेंशियल, दे आर द इनवर्सेस। ये देखो sin 3t मिल गया, log लेने से एक्सपोनेंशियल निकल जाता है। किसी भी फंक्शन पे उसका इनवर्स अप्लाई करें तो ये निकल जाता है। यस, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि log e raised to sin 3t, b log e यूज करो, b log e की वैल्यू 1 होती है। जरूरी नहीं है, डायरेक्ट एक स्टेप में ही आता है। आप लिखेंगे वैसा तो रॉन्ग भी नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे। देखो sin 3t आया, cos 3t आया, मतलब स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो ये एक्शन कॉमन होते हैं। कहां कहां स्क्वेयरिंग एडिंग करना पड़ता है? टेकिंग प्रोडक्ट, टेकिंग कोशेंट, राइट। तो ये स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो log x का होल स्क्वायर प्लस log y का होल स्क्वायर इज sin स्क्वायर 3t प्लस cos स्क्वायर 3t। देखो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करने से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आ गया। एंड इन दिस वे वी हैव इलिमिनेटेड, हमने पैरामीटर को इलिमिनेट कर दिया। और ये ऑलवेज पॉसिबल होता है, थोड़े से एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, सिंपल मैनिपुलेशंस करने पड़ेंगे, लेकिन t को इलिमिनेट करने का एक फ्रेम ऑफ माइंड आपका रेडी रहना चाहिए। जब भी आप पैरामेट्रिक
फंक्शन के साथ डील कर रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x log x का होल स्क्वायर यानी कि 2 log x, ये अभी डिफरेंशिएट जो कर रहे हैं ये फॉर्म है हमारे टेबल का f of x raised to n, f of x raised to n का डेरिवेटिव ये y डैश n f of x raised to n minus 1 into f dash of x, तो ये n f of x raised to n minus 1 log x into log x का डेरिवेटिव 1 by x, इसका डेरिवेटिव 2 log y raised to 1 into log y का डेरिवेटिव 1 by y into dy by dx। ये चेन रूल अच्छे से समझ के ये जो डेरिवेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज बाय चेन रूल f of x raised to n, राइट? तो ये हो गया n f of x raised to n minus 1 into 1 by x, ये भी n f of x raised to n minus 1 into log y का डेरिवेटिव 1 by y into dy by dx, 2 cancel, the 2 get cancelled, and now you take this to right and rewrite the term log y into 1 by y dy by dx is equal to log x by x, so therefore dy by dx is minus y by x log x by log y, right? So this is the dy by dx, right? Third, if x is equal to, third question है, if x is equal to t plus 1 upon t minus 1, this is again in parametric, t minus 1 upon t plus 1, then show that this is y square plus dy by dx is equal to 0, right? Y square dy by dx is equal to 0. Okay, now यहाँ पे भी हम थिंक करेंगे how to eliminate the parameter t। क्या होना चाहिए? क्या एलिमिनेशन ऑफ पैरामीटर t, यहाँ पे थोड़ा सोचना है, थोड़ा पॉज लेना है और थिंक करना है कि हाउ वी कैन एलिमिनेट t इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, आंसर आएगा बट इट नीड्स मोर एफर्ट्स। सो क्या व्हाट आई टू डू, t को एलिमिनेट करना है, इन दोनों को क्या एक्शन लेने पड़ेगी? जैसे कि हमने देखा कभी कभी प्रोडक्ट ले रहे हैं, स्क्वेयरिंग एडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये तो दिख ही रहा है कि प्रोडक्ट ये बराबर टी निकल जाता है। सो अगेन टेकिंग प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, ये एक न्यू टाइप है। यस, गार्गी करेक्ट है, टेकिंग प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट लो, x इंटू वाई, x क्या है? t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1, ये t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, प्रोडक्ट लिए तो ये इसके साथ और ये कैंसिल ही हो गया, विद इन मिनट ये आंसर आ गया, अभी कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट? तो y is 1 by x, y is 1 by x, आंसर किस फॉर्म में है? y स्क्वायर है क्या आंसर में? स्क्वायर चाहिए। ओके, ठीक है, देखिए यहाँ पे x को लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx is minus 1 by x square,
जो चाहिए वो y में चाहिए, इसलिए हम रिप्लेस कर देते हैं। शो दैट में थोड़ी मैनिपुलेशन करनी है। अब आप बोलेंगे कि आंसर तो नहीं है, आंसर तो y में चाहिए, तो इस x को 1/y लिख दो, हो गया काम। नहीं समझ में आया? यहां से x को क्या लिख सकते हैं? x इज नथिंग बट 1/y, सो ये 1/y का होल स्क्वायर, सिंस x इज आल्सो 1/y। ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, फिर से ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, राइट। 1/y² लिखे तो ये क्या हो जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू -y², एंड जो आंसर चाहिए वो फॉर्म हमें आ गया। तो ये तो मैनिपुलेशंस रहते हैं, शो दैट रिजल्ट में थोड़ा सा थिंक करना पड़ता है, जो डिजायर्ड है उसके फॉर्म में लाने के लिए, राइट। तो यहां से पॉसिबल है, कर्व से ही पॉसिबल है। x में आंसर था लेकिन उसको y में चाहिए था, तो x की वैल्यू y में लिख दो और जो चाहे वो आंसर क्रिएट करो। तो वेरी सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट है। थोड़े थोड़े एक्शंस है बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। Is it okay? Next, question number 4। आप MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ऐसे अभी सभी कॉइंट के क्वेश्चंस आने वाले हैं। कमिंग संडे जो एग्जाम होगी तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन उसमें रहेगा ज्यादातर। फोर्थ, if x is equal to a cos cube t, comma y is equal to a sin cube t, then show that dy by dx is equal to y by x raised to 1/3। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नो, डायरेक्ट मैं करूंगा नहीं, राइट। अभी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से तो आने वाला ही है, कुछ नहीं आया तो आप यूजुअल मेथड से करेंगे, लेकिन ये भी एक स्टैंडर्ड कर्व है। ये अभी तो नहीं आएगा, लेकिन आप अगर एडवांस का प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे कर्व आएगा आगे, राइट। तो ये इंजीनियरिंग में आता है। इस कर्व का नाम है एस्ट्रॉइड। इसका नाम क्या है? एस्ट्रॉइड इसका नाम है। मैंने 11th में भी नोट करके दिया था, कुछ लोगों को याद है तो ट्रिगोनोमेट्री की नोटबुक ओपन करके देखो, वहां पे भी एक थीटा को इलिमिनेट करने के लिए कहा गया था। इसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड या फोरकस्ट हाइपोसाइक्लॉइड, फोरकस्ट हाइपोसाइक्लॉइड। या स्टार शेप कर्व बोलते हैं इसको, स्टार शेप्ड कर्व। ये इसलिए बताया जा रहा है कि आगे आपको इंजीनियरिंग में आने के बाद इसको ट्रेस करना है, इसको प्लॉट करना है, टेक्निक है। अगर इसका रीजन फाइंड करने का इंटीग्रेशन में बोला जा सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन होता है, लेकिन बोला जा सकता है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस कर्व, राइट। तो उस केस में ये नाम याद है तो ठीक है। स्केच इसका बता देता हूं, ये स्टार शेप कर्व यानी कि ऐसा दिखता है। ये कर्व जो है फोरकस्ट हाइपोसाइक्लॉइड, इट लुक्स लाइक ए स्टार, ये इसका नाम है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, डेरिवेटिव से इसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आगे के कोर्स में इसका रेफरेंस है। तो एक बार रखे नोटबुक में, फैमिलियर हो जाएंगे, राइट। सबको समझ में आया? द कर्व इज कॉल्ड एज फोरकस्ट हाइपोसाइक्लॉइड। राइट। यहां पे आपको
लेकिन एरिया फाइंड करना है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का फाइंड करेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिलेगा। ये इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन में करने वाले हैं। जब जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन करेंगे तब वहां पे इसके अक्रॉस आएंगे और उस केस में एरिया फाइंड करना है तो उसका ग्राफ दिखना चाहिए। कुछ कर्व है जो आपको मालूम होने चाहिए। जैसे ही उनके ग्राफ सबको मालूम हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल में आएगा। ओके, तो ये कर्व है। अभी हमारा इंटेंशन है कि इसमें से t को निकाल देना, राइट। t को निकाल देना है तो साइन कॉस जब भी आता है तो निकालने का एक ही तरीका है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। यहां से कॉस साइन को फ्री इंडिपेंडेंट ऑब्टेन करे, स्क्वायरिंग एडिंग करे, मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा x बाय a इज इक्वल टू कॉस क्यूब t। तो ये हो जाएगा x बाय a रेस टू 1 बाय 3। मुझे तो कॉस एंड साइन चाहिए। जब तक कॉस साइन नहीं मिलेंगे तब तक मैं उसको इलिमिनेट नहीं कर सकता हूं। साइन क्यूब t, यहां पे मैं क्यूब रूट ले रहा हूं। सबको समझ में आया? मैं लिखने की एवरी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। साइन t, जब भी साइन कॉस वाला कोई भी एक्सप्रेशन है पैरामेट्रिक फॉर्म में तो उसमें से साइन थीटा कॉस थीटा ऑब्टेन करो, ऑटोमेटिकली इलिमिनेट हो जाएगा पैरामीटर t। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, राइट। तो ये फ्रेम ऑफ माइंड थी मेरे माइंड में कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। इसलिए पहले क्वेश्चन में भी मैंने स्क्वायरिंग एंड एडिंग सोचा था जहां की प्रोडक्ट से ही आ रहा था, राइट। तो ये स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो x बाय a रेस टू स्क्वायर करने से 2 बाय 3 आता प्लस y बाय a रेस टू 2 बाय 3 इज इक्वल टू cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, राइट। ये हो गया x रेस टू 2 बाय 3 अपॉन a रेस टू 2 बाय 3। ये y रेस टू 2 बाय 3 अपॉन a रेस टू 2 बाय 3 इज 1, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? x रेस टू 2 बाय 3 प्लस y रेस टू 2 बाय 3 a रेस टू 2 बाय 3। ये इसका कार्टेशियन फॉर्म है, इसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड। ये इक्वेशन याद रखना है, कर्व भी याद रखना है। ये इसके पैरामेट्रिक फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म। इंजीनियरिंग में अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया और वहां पे कोई अच्छा टीचर है तो उसको जस्टिफाई करेगा, अदरवाइज वहां पे पढ़ाते नहीं है, खुद को ही पढ़ना पड़ता है। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में ये कर्व है, ये इसका पैरामेट्रिक फॉर्म था तो हमने इलिमिनेट कर दिया। अभी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। समझ में आया? फ्रेम ऑफ माइंड सबकी फॉर्म हो गई कि कभी कभी हमें t को इलिमिनेट ही करना है, राइट। तो इलिमिनेट करने के बाद अभी डिफरेंशिएट करो। नाउ डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x रेस टू 2 बाय 3 का डेरिवेटिव 2 बाय 3 x रेस टू 2 बाय 3 माइनस 1 प्लस 2 बाय 3 y रेस टू 2 बाय 3 माइनस 1 इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू e रेस टू 2 बाय 3 है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो ये 2 बाय 3 राइट हैंड साइड में 0 है, कैंसिल आउट कर देंगे। x रेस टू ये माइनस 1 बाय 3 y रेस टू माइनस 1 बाय 3 dy बाय dx आ गया 0। ये राइट में लिखो तो dy बाय dx y रेस टू माइनस 1 बाय 3 इज माइनस x रेस टू माइनस 1 बाय 3। तो dy बाय dx क्या आ गया? माइनस x बाय y रेस टू माइनस 1 बाय 3। ये डिनोमिनेटर में जाएगा, यहां तो मैनिपुलेशन से सिंपल
अलजेब्रिक, लेकिन आपको पावर पॉजिटिव में चाहिए तो ये इसका रेसिप्रोकल ले, y by x raised to 1/3, y by x raised to 1/3। समझ में आया? फाइन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। x is equal to 2 cos raised to 4 t plus 3, y is equal to 3 sin raised to 4 t plus 3. Show that dy by dx is equal to minus root 3y by 2x, minus root 3y by 2x. राइट? तो यहां पे ये साइन कॉस आ गया, तो आप सोचेंगे कि साइन एंड कॉस इंडिपेंडेंट ऑब्टेन होने चाहिए। जैसे ही इंडिपेंडेंट ऑब्टेन हो गए, आगे का वर्क कर सकते हैं। x/2 इज cos t plus 3 raised to 4, y/3 is sin t plus 3 raised to 4। साइन एंड कॉस को इंडिपेंडेंट ऑब्टेन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x/2 raised to 1/4 is cos t plus 3, y/3 raised to 1/4 is sin t plus 3। फाइन? यस। टेकिंग फोर्थ रूट अगर किसी को लिखना है यहाँ पे, तो हम ऑब्वियस बात है यहाँ पे टेकिंग फोर्थ रूट, इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं रहना चाहिए। फोर्थ रूट ले रहे हम, राइट? अभी स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, यस। इफ आई स्क्वेयर एंड ऐड दिस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो स्क्वेयरिंग करने से x/2 raised to 2/4 यानी कि 1/2, y/3 raised to 1/2 is cos square t plus 3 plus sin square t plus 3। तो ये क्या हो गया देखो, x/2 raised to 1/2, y/3 raised to 1/2 is 1। x/2 raised to 1/2 इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट x है ना, ये ऐसा लिखे तो ज्यादा बेटर है। रूट x बाय रूट 2 प्लस रूट y बाय रूट 3 इज इक्वल टू 1। अभी डेरिवेटिव लेना ज्यादा बेटर रहेगा। रूट x का डेरिवेटिव सब लोग जानते हैं, कांस्टेंट दिख रहा है, आंसर भी स्क्वायर रूट में चाहिए, तो ये फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अभी डिफरेंशिएट करेंगे यहां पे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1/2 रूट x इंटू 1/2, 1/2 रूट y इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 0, राइट? ये 1/2 कैंसिल कर सकते हैं और ये क्या हो गया, 1/√2x इंटू dy/dx आएगा। चेन रूल मैंने कंप्लीट नहीं किया। ये रूट y का डेरिवेटिव 1/2√y, ये 1/√3 कांस्टेंट इंटू dy/dx। तो
तो ये 1/√3y इंटू dy बाई dx, ये रूट में टर्म एक साथ लिखे, ये राइट में लिखेंगे √3y dy बाई dx इज माइनस 1/2√x, dy by dx is minus √3y upon √2x. Is this clear? तो ये टाइप क्लियर हो गई। अभी अच्छे से समझ लेना है, एमसीक्यू में कोई दिक्कत नहीं आएंगी। मैं एमसीक्यू पढ़ाते टाइम आपको आने वाले जो टेस्ट ऑनेस्टली दे रहे हैं उनका एमसीक्यू का भी प्रिपरेशन 100% होता है। अब नेक्स्ट, if x is equal to, क्वेश्चन नंबर 6, if x is equal to log of 1 plus t square, y is equal to t minus tan inverse t, then show that dy by dx is equal to root of e raised to x minus 1 by 2, right? dy by dx is root of 1 e raised to x minus 1 by 2। हाँ, अभी में लेकिन प्रॉब्लम आ गया है। अब थोड़ा t को इलिमिनेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। किसने किया क्या? कुछ लोगों ने टाइप भी किया। तो यहां पे t को इलिमिनेट करना, इलिमिनेट हो सकता है बट थोड़ा सा मुश्किल है। एक्सपोनेंशियल ले e रेस टू x, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना यहाँ पे ज्यादा बेटर है। तो ऐसे केस में अगर आप, यस कुछ लोगों ने, साक्षी ने इलिमिनेट करके बताया भी है, साक्षी यू आर करेक्ट, इलिमिनेट होता ही है। तो मैं सबके लिए बता रहा हूं कि अगर ज्यादा कोशिश करनी पड़ रही है इलिमिनेट होने के लिए तो उसको छोड़ दो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, आंसर मिलेगा, राइट? मतलब अपनी बेसिक मेथड जो है, मैं अभी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से इसका आंसर निकाल के बताते हैं, बाद में क्वेश्चन पे आते हैं। तो डायरेक्ट में क्या प्रॉब्लम आता है? देखो, dx by dt 1 upon 1 plus t square into 2t, ये तो हमारा फंडामेंटल पार्ट है। dy by dt, व्हाट इज dy by dt? t का डेरिवेटिव 1 है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus t square। डेरिवेटिव डेली रीड करने चाहिए, फॉर्मूले याद नहीं है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, therefore dy by dx, what is dy by dx? या इसको मैं थोड़ा रिराइट करके लेता हूं, ये क्या हो जाएगा? 1 plus t square minus 1 by 1 plus t square minus 1 plus 1 कैंसल, एंड ये dy by dt upon dx by dt। तो dy by dt क्या है? t square by 1 plus t square, ये है 2t by 1 plus t square, 1 plus t square कैंसल, t square by 2t यानी कि t by 2। तो इसमें दिक्कत ये आती है कि अगर आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया तो आंसर तो x में है, आपको आंसर t में, पैरामीटर में मिलेगा। तो कोई बात नहीं, पैरामीटर में भी आंसर मिल गया तो आप अभी यस रोकड़े करेक्ट है। अभी क्या करें, ये जो dy by dx मिला आपको, dy by dx is t by 2। अब t फाइंड करें। t फाइंड कैसे करें? x में, क्योंकि आंसर x में है। तो और आंसर में e पावर x है, मतलब x का यूज करें, इसका यूज करें, राइट? तो आंसर को डिजायर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये एफर्ट्स अगर आपने t को इलिमिनेट नहीं किया तो लेना पड़ता है।
तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, e पावर x को 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हैं। e पावर, यहां तो मैं t x से स्टार्ट करके बताता हूं, ये log है, log हटा दो तो ये क्या हो जाएगा, log निकाल दिया तो e रेज़ टू x इज 1 प्लस टी स्क्वायर। तो t यहां से मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, t e रेज़ टू x माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि t मिल गया रूट ऑफ e रेज़ टू x माइनस 1। देखिए ये एफर्ट्स एंड में लेने पड़ते हैं, पुट इन 1, अभी ये 1 में पुट करो आपको आंसर मिलेगा, dy बाय dx इज रूट ऑफ e रेज़ टू x माइनस 1 बाय 2। तो ये एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। अगर आपने ट्रेडिशनल मेथड से डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया तो एंड में आपको आंसर लाने के लिए ये एफर्ट्स लेने हैं, तो ये भी पॉसिबल है। लॉग एंड एक्सपोनेंशियल आपस के इन्वर्सेस है, t की वैल्यू मिल गई, i वाले t की वैल्यू यहां पे पुट की 1 में, तो ये फॉर्म आंसर का आ गया, राइट। हाँ, तो जिन लोगों ने इसको ही एलिमिनेट किया है अप्रिशिएबल है। एलिमिनेट होता है क्या चेक करें, तो डायरेक्ट भी कुछ लोगों ने एलिमिनेट किया है। नेक्स्ट है 7। सेवेंथ क्या है, देखिए 7th है x इज इक्वल टू साइन इनवर्स e रेज़ टू t, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस e रेज़ टू 2t। देन शो दैट साइन x प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू 0। यस, इसको भी कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की, या इलिमिनेट भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलिमिनेट भी इजीली हो जाएगा। होता है क्या इलिमिनेट, देखो साइन x इज इक्वल टू e रेज़ टू t और यहां पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस e रेज़ टू 2t। तो इलिमिनेट करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है, ये e रेज़ टू t की वैल्यू आएगी, यहां पे पुट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर डायरेक्ट डिफरेंशिएट ही करें, ज्यादा इजी है, राइट। तो चलो डायरेक्ट डिफरेंशिएट ही करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर t। इलिमिनेट भी होता है, कोशिश करेंगे, उसमें भी एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो dx बाय dt, व्हाट इज dx बाय dt, साइन इनवर्स e रेज़ टू t का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस e रेज़ टू f ऑफ x का होल स्क्वायर इनटू e रेज़ टू t, राइट। ये डेरिवेटिव किस फॉर्म से, चेन रूल से, साइन इनवर्स f ऑफ x 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस f ऑफ x का होल स्क्वायर इनटू e रेज़ टू दिस dy बाय dt। मौलिक जरा इसका डेरिवेटिव बताओ, मौलिक इसका डेरिवेटिव रीड करो, मौलिक है क्या, मौलिक 2 रूट 1 माइनस e रेज़ टू 2t इंटू 0 माइनस 2 e रेज़ टू 2t। ये y का डेरिवेटिव t के साथ 1 अपॉन 2 रूट f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x, इसका डेरिवेटिव dy बाय dt, राइट। तो देयरफॉर हमें तो चाहिए dy बाय dx, इट इज dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। ये हो गया 2 कैंसल, माइनस e रेज़ टू 2t अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस e रेज़ टू 2t।
ये e रेज टू टी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस e रेज टू 2t, ये रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ गया dy बाई dx। ये देखो dy बाई dx क्या आ गया आपके पास, e रेज टू 2t अपॉन दिस, यानी कि e रेज टू t आ गया। ये e रेज टू 2t अपॉन e रेज टू t, यानी कि e रेज टू t एंड e रेज टू t नाउ, ये एंड में लिखेंगे। इसमें तो आंसर नहीं चाहिए, तो अभी फोकस करेंगे e रेज टू t किसमें है, इसमें है, तो हम e रेज टू t की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये ऑब्वियसली मिलेगी e रेज टू x, नो sin x इज e रेज टू t। ये साइन अप्लाई करो दोनों साइड पे, साइन अप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो पुट इन 1, ये वैल्यू 1 में पुट करो एंड यू आर गेटिंग द रिक्वायर्ड। तो ये ऐसा काम ऑलवेज पॉसिबल है, राइट? जहां पे एलिमिनेशन इजी है वहां पे एलिमिनेट करे, अगर एलिमिनेट होता ही नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं, यूजुअल डिफरेंशिएशन करे और एंड में आंसर प्रॉपर फॉर्म में लिखे, राइट? इट इज क्लियर? नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल है इसका, इस सम में ये 8th एग्जांपल है। x is 2dt by 1 plus t square, y is a times 1 minus t square by 1 plus t square, then dx by dy, show that बोल रहा है dx by dy is what, minus b square y by a square x। आदित्य बोल रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करें। यस, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आपको लिख के दिया गया ये x इज इक्वल टू ऐसा, इसको ऐसा देखो b टाइम्स 2t बाय 1 प्लस t स्क्वायर है, तो और ये 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो ट्रिगोनोमेट्री में ये दोनों भी फॉर्म स्टैंडर्ड थे। उसके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन करते थे हम, tan थीटा इज द स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। जिनको सब्स्टिट्यूशन टेबल याद है उनको इमीडिएट क्लिक होगा कि यहाँ पे ये बेटर है, राइट? तो चलो दोनों के लिए एक ही है, तो मैं पुट कर लेता हूं t इज इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स t। ये सब्स्टिट्यूशन है। ये कब समझ में आता है, हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन टेबल ऑब्टेन किए। एक्चुअली ये दिखता है, जिनको फार्मूले दिख रहे हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फार्मूला है, एंड ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये tan 2 थीटा का फार्मूला है। तो ये हो गया x इज इक्वल टू b इंटू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू b इंटू tan 2 थीटा, y इज इक्वल टू a इंटू, सॉरी ये sin 2 थीटा है ना, ये sin 2 थीटा a इंटू cos 2 थीटा। तो ये थोड़ा और इजी हो गया। तो ये कब समझ में आता है, अगर पूरी तरह पढ़ रहे हैं तो देखते क्या राइट पाथ है, ये माइंड में समझ में आना चाहिए।
तो यहाँ पे x बाय b इज साइन 2 थीटा, y बाय a इज कॉस 2 थीटा, राइट। मीर है क्या? मीर जोशी है, मीर। तो देखो इसकी स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करें, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो एक्स स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर 2 थीटा। तो ये निकल गया एक्स स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ओके, इसकी जरूरत ही नहीं रही, हमारा थीटा जो है ना वो इलिमिनेट ही हो गया। तो अभी डिफरेंशिएट करें, आंसर ही मिलेगा, क्योंकि इसमें से पैरामीटर जो था वो एक्चुअली इलिमिनेट हो गया। तो अभी डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो भी आंसर मिलेगा, लेकिन वो चाहता है dx बाय dy। तो बेटर है क्या x के साथ या y के साथ डिफरेंशिएट करें? देखो जरा, ये चाहता है dx बाय dy, तो किसके साथ डिफरेंशिएट करना बेटर है? y के साथ डिफरेंशिएट करना बेटर है। यस, तन्वी करेक्ट है। तो ये 2, ये इसका डेरिवेटिव y के साथ, ये y के साथ ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बाय बी dx बाय dy। आर्या समझ के काम कर रहे हैं? ये विथ रिस्पेक्ट टू y, 2y बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x का y के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2x बाय बी स्क्वायर dx बाय dy, ये 2y बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये 2 कैंसिल, तो x बाय बी स्क्वायर dx बाय dy इज इक्वल टू माइनस y बाय ए स्क्वायर, एंड देयरफॉर dx बाय dy इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर y बाय a स्क्वायर x। ये आंसर आ गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इसमें बहुत अच्छी लर्निंग हुई, आगे चल के एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छा फ्रेम ऑफ माइंड फॉर्म हो गया। अब इसमें एक टाइप है, इसमें एक टाइप है, वो टाइप भी, ये पैरामीट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। एक डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, दूसरा एक बात मिल गया आपको कि विथ रिस्पेक्ट टू t इंस्टेड ऑफ दैट इलिमिनेट द पैरामीटर, पैरामीटर को ही इलिमिनेट करें, राइट। अब तीसरी टाइप है इसमें, ये थर्ड टाइप पैरामेट्रिक में पढ़ रहे हैं। आप देखिए सिस्टमैटिक इसका एनालिसिस करें, चैप्टर आपको लग रहा है कि ये इजी है, एट द एंड आप डेरिवेटिव आना चाहिए किसी भी फंक्शन का। ये तो पहली रिक्वायरमेंट है, जेडब्ल्यू मेन का बेसमेंट है। ऐसा डायरेक्ट डेरिवेटिव जेडब्ल्यू मेन में नहीं आता, राइट। उसके लिए अलग से प्रिपरेशन करना है। ये तो बस एक क्राइटेरिया है कि पहले किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हमें आना चाहिए, फिर उसके स्टेप में ये इन्वॉल्व होता, राइट। तो थर्ड टाइप है, इसमें लिखो थर्ड टाइप में डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन, डेरिवेटिव, ये थर्ड टाइप लिखे पैरामेट्रिक में, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन with respect to another function, derivative of one function with respect to another function। तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के साथ, अभी तक x के साथ ही था, हम डेरिवेटिव अभी तक किसके साथ, वेरिएबल के साथ देखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x या डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y
ऐसा पढ़ेगा। अभी यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन है। यह जस्ट कहने के लिए है। इसमें क्या करना है, देखो जो भी फंक्शन बोला जाएगा, आपको अभी आंसर ऐसा क्वेश्चन आएगा, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स। अब देखो ये वर्डिंग कैसी आती है, समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा अजीब सा लगता है। अभी तक तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x था, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ। लास्ट एग्जांपल में x का y के साथ भी आ सकता है, x विथ रिस्पेक्ट टू y। अभी देखें लास्ट एग्जांपल में वो कन्वीनियंट था। तो वेरिएबल का डेरिवेटिव वेरिएबल के साथ पॉसिबल है, लेकिन एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के साथ भी पॉसिबल है, और उसको डील करने का वे समझे। या ऐसा भी हो सकता है, डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू cos x, सेम फंक्शन के बाद साथ भी हो सकता है, cos x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू cos x, ये भी वेल डिफाइंड टर्म्स है। तो ऐसे केस में क्या करना है, जो भी गिवन फंक्शंस है you call them as a u and v। इधर ध्यान दे, लिखे ना कुछ भी, ये फंक्शन दिया है तो इसको क्या कहना है, लेट u is equal to sin x and v is equal to log x। पहले मेथड समझो, जो भी फंक्शन दिए हैं तो पहले फंक्शन को ऑलवेज एक u असाइन करना है, दूसरे फंक्शन को v कहना है, राइट। ऐसा करने से क्या हो गया पता है, ये इमीडिएटली पैरामीट्रिक फंक्शन बन गए। समझ में आ रहा है क्या आपको? Once I call this as a u and this as a v, u is a sin x, v is a log x, मतलब x पैरामीटर हो गया। अब मुझे किसका किसके साथ चाहिए, u का v के साथ चाहिए, और u का डेरिवेटिव v के साथ चाहिए। तो पैरामीट्रिक फंक्शन का फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि du by dx अपॉन dv by dx, du by dx अपॉन dv by dx, ये फार्मूला है। तो sin x का डेरिवेटिव log x के साथ चाहिए, तो u is sin x, v is log x, तो du by dv आएगा du by dx अपॉन dv by dx, राइट। तो ये समझ में आया, एक फंक्शन का डेरिवेटिव अगर दूसरे फंक्शन के साथ चाहिए तो हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं u एंड v। जैसे ही u एंड v इंट्रोड्यूस किया गया तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन बनेंगे, x एक पैरामीटर बनेगा, और इसका डेरिवेटिव इस फार्मूले से आएगा। तो इसमें लिखो, इसमें आप लिखे एक लाइन, whenever we are interested, लिखे whenever we are interested in derivative of one function with respect to another, with respect to another function, we follow following steps। तो इसमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1, तो पहला फंक्शन में लिखे assume first function as a u and second function as a v। assume first function as a u, second function as a v। फर्स्ट फंक्शन को u कहे, सेकेंड फंक्शन को v कहे। स्टेप नंबर 2, these are parametric functions with respect to x। these are parametric functions, these are parametric functions in terms of parameter x। step number 3, use du by dv
by dx upon dv by dx। तो ये 3 स्टेप्स है। क्या कर रहे हैं हम? पहले तो गिवन फंक्शन को एक को u कहेंगे, दूसरे को v कहेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? उनको पैरामेट्रिक फंक्शन ट्रीट करके उनके डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। एंड लास्ट में u का v के साथ, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का सेकंड फंक्शन के साथ डेरिवेटिव कैसा मिलेगा? पैरामेट्रिक फॉर्मूले से मिलेगा। तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि ऐसा जब भी आएगा तो वो पैरामेट्रिक फंक्शन ही है, इतनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। ऑटोमेटिकली ये स्टेप आप फॉलो करेंगे, ये स्टेप बताने की जरूरत भी नहीं थी। तो जस्ट आपके माइंड में ये रहना चाहिए। एक क्वेश्चन करता हूं ताकि सबको समझ में आए। देखिए इधर, तो फाइंड डेरिवेटिव, क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट बिट है। डिफरेंशिएट, क्या डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है? एक साइन एक्स बोल रहा है। डिफरेंशिएट एक साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan x। ये ऐसा ही ऑलवेज एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ डेरिवेटिव, यानी कि फ्रेम ऑफ माइंड क्लियर रहनी चाहिए। इसको पहले फंक्शन को u कहना है, दूसरे फंक्शन को v कहना है। यस, तो पहला स्टेप नंबर 1 क्या नोट करके लिया? लेट अस असाइन फर्स्ट फंक्शन एज अ u एंड सेकंड फंक्शन एज अ v। फाइन, क्लियर? अभी इसका तो डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फंक्शन ट्रीट करके डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो गया? देखो, du by dx, ये फर्स्ट फंक्शन x, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, प्रोडक्ट है यहां पे, प्लस सेकेंड फंक्शन sin x, डेरिवेटिव ऑफ x 1, uv रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये dv by dx। बोलो, tan x का डेरिवेटिव ये हो गया sec स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। Therefore du by dv, आपको तो किसका किसके साथ चाहिए? u का v के साथ। u का मतलब इस फंक्शन का इसके साथ, यानी कि u का v के साथ। तो क्या फार्मूला है पैरामेट्रिक का? du by dx अपॉन dv by dx। du by dx क्या है? x cos x प्लस sin x अपॉन ये sec स्क्वायर x। दैट्स ऑल। तो ये डेरिवेटिव है एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ। डिफरेंशिएट, दूसरा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x by 1 plus x square with respect to cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square। देखो, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के साथ आ रहा है। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। यस, तो पहले तो हम क्या करेंगे? यूजुअल मेथड बताई गई आपको। जब भी ऐसा रहेगा, यू असाइन फर्स्ट फंक्शन एज अ u, सेकंड फंक्शन एज अ v। तो u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x by 1 plus x square and v is equal to cos inverse
1 minus x square by 1 plus x square, right? Is this clear? हाँ, तो ये देखते ही आज ही सॉल्व किया। ये 2x by 1 plus x square है और 1 minus x square by 1 plus x square है। इनवर्स का सब्स्टिट्यूशन टेबल याद होना चाहिए। टेबल ऑलवेज रीड करे। तो ये पुट x is equal to tan theta, x को tan थीटा पुट करते हैं। ये कब समझ में आता है? जब आप टेबल पढ़ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री आपके फार्मूले रेडी है तो समझ में आता है। तो थीटा क्या हो गया? थीटा इज tan इनवर्स x। इसकी जरूरत है तो यूज करेंगे। तो देखो, दोनों के लिए एक ही सब्स्टिट्यूशन काम करता है। therefore u is equal to sin इनवर्स 2 tan थीटा, x के जगह tan थीटा पुट करना है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अवनीश जोशी है क्या? बात करो अवनीश जोशी, मीर जोशी। आप यहाँ पे लेक्चर में तो ज्वाइन दिख रहे हैं, लेकिन यू आर स्लीपिंग। आफ्टर ज्वाइनिंग यू आर स्लीपिंग। मीर जोशी चैट बॉक्स में लिखो, आर यू देयर? कितने बार आपका नाम लिया? अटेंटिव नहीं है आप लेक्चर में। साइन इनवर्स, ये क्या हो गया? साइन 2 थीटा एंड b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये कॉस 2 थीटा, राइट? तो ये क्या हो गया? u इज इक्वल टू 2 थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन, v इज इक्वल टू 2 थीटा, राइट? तो यस, आंसर 1 ही आएगा क्योंकि ये सेम आ गया, मतलब आंसर 1 ही आता है। तो थीटा की वैल्यू पुट करें, फॉर्मेलिटी कंप्लीट करें, राइट? तो ये एक्चुअली आंसर 1 ही आना चाहिए। थीटा क्या है? 2 tan इनवर्स x एंड b 2 tan इनवर्स x। जब भी फंक्शन सेम आएंगे तो कैंसिल हो जाएगा डेरिवेटिव। वो आंसर du by dx, इसका du by dx क्या आएगा? du by dx is 2 by 1 plus x square, dv by dx is 2 by 1 plus x square. Therefore du by dv, u का डेरिवेटिव v के साथ, तो ये du by dx अपॉन dv by dx। देखो इनवर्स की भी प्रैक्टिस हो रही है, और आगे के आर्टिकल में तो पूरी प्रैक्टिस होती है पूरे चैप्टर की। तो ये हो गया 2 by 1 plus x square, 2 by 1 plus x square, cancel, answer is 1। ओके, यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू।